हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनेस्टा टीम्स। आज है 13 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रोवोल्टाइक फार्मिंग विच वाज हाईलाइटेड इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इवेंट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिस पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया है। आपके ऑप्शंस हैं, the simultaneous use of land for agriculture and solar energy generation. Second, the practice of growing crops with no water uses. Third, growing crops in underground farms या फिर none of the above. आपको बताना है एग्रोवोल्टेइक फार्मिंग क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। So it is simultaneous use of land for agriculture and solar energy generation. आप देख सकते हैं, the seventh session of the International Solar Alliance in New Delhi focused on sustainable energy and agrivoltaic farming. Agrivoltaic farming involves using land for both agriculture and solar energy generation with the crops growing under solar panels. So it maximizes land efficiency, provides shade to crops, reduces heat stress, and supports climate resilience. So this practice boosts renewable energy generation, contributes to food security, and offers economic benefits by diversifying income through both crops and solar energy. तो आप ध्यान रखेंगे, ये टर्म काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। was awarded the Rohini Nair Prize 2024 for promoting STEM education in rural India. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, रोहिणी नायर पुरस्कार किसे दिया गया जिन्होंने ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य किया है या इस कार्यक्रम को लागू किया है। आपके ऑप्शंस हैं, विनीत सिन्हा, अनिल प्रधान, विप्लव मेहता या फिर सौरभ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो रोहिणी नायर प्राइज 2024 ये दिया गया है अनिल प्रधान को। आप देख सकते हैं, अनिल प्रधान, a 28-year-old engineer from Odisha, won the third रोहिणी नायर प्राइज फॉर प्रमोटिंग स्टेम, जिसमें आता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन इन रूरल इंडिया। So he co-founded the Young Thinker Foundation and launched Thinker on Wheels, a mobile lab bringing robotics and 3D printing to rural students. So his work has impacted over 2.5 lakh students across Odisha, Telangana and Tamil Nadu. रोहिणी नायर प्राइज की बात करें तो the Rohini Nair Prize honoring contributions to rural development includes 10 lakh rupees, a citation and a trophy, and it's awarded annually to individuals under 40 by the Nair Foundation. और आप ध्यान रखेंगे 2024 का ये प्राइज दिया गया है अनिल प्रधान को, जो कि संबंध रखते हैं ओडिशा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country hosted the 27th Commonwealth Heads of Government meeting from 24th to 26th of October 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक 27वें राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं, समोआ, रवांडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर एंटीगुआ एंड बारबुडा।
यहाँ पर आपसे 27th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इसकी होस्ट कंट्री कौन सी रही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। तो ये आयोजित किया गया है समोआ के द्वारा। आप देख सकते हैं द 27th Commonwealth Heads of Government meeting or the meeting of the heads of government of the Commonwealth of Nations was held in Apia, Samoa from 24th to 26th October 2024. And Samoa hosted the meeting with support from Australia. The theme of Chugam 2024 is One Resilient Common Future Transforming Our Commonwealth. ये थीम रहा है, आप ध्यान रखेंगे। And the Indian delegation was led by Union Minister Kiran Rijiju, Ministry of Parliamentary Affairs under Government of India, participated in the executive session of Chogam 2024. So the Commonwealth Parliamentary Association is represented at Chogam by Commonwealth parliamentarians from different jurisdictions and the CPA Secretary General Stephen Twigg. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to which report did India impose export bans and duties on commodities like rice, sugar, and onions in 2023, leading to $120 billion in implicit taxes on farmers, the highest among 54 countries? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में चावल, चीनी और प्याज जैसी वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध और शुल्क लगाया, जिससे किसानों पर $120 बिलियन का निहित कर लगेगा, जो कि 54 देशों में सबसे अधिक है। आपके ऑप्शंस हैं FAO फूड आउटलुक रिपोर्ट, सेकंड OECD एग्रीकल्चरल पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, थर्ड वर्ल्ड बैंक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर यूनाइटेड नेशंस फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। आपसे यहाँ पर उस रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अनुसार भारत ने चावल, चीनी और प्याज जैसी वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध और शुल्क लगाया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये रिपोर्ट है OECD की एग्रीकल्चरल पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन रिपोर्ट। आप देख सकते हैं In 2023, Indian farmers faced $120 billion in implicit taxation due to export restrictions and other trade policies, according to an OECD report. So the restrictions applied to key commodities such as rice, de-oiled rice bran, sugar, and onions, aimed at keeping domestic prices low for consumers. So these policies lowered domestic prices but reduced the income farmers would have earned from exports. इस इवेल्युएशन रिपोर्ट की बात करें तो द एग्रीकल्चरल पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन 2024 रिपोर्ट नोटेड अ सिग्निफिकेंट नेटिव टोटल मार्केट प्राइस सपोर्ट ऑफ $110 billion, even as positive support measures amounted to $10 billion. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme for the World Antimicrobial Resistance Awareness Week 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा है। आपके ऑप्शंस है प्रिवेंट, डिटेक्ट, रेस्पॉन्ड, या फिर एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ, थर्ड रेजिस्ट एंड रेस्पॉन्ड टुगेदर, या फिर इनोवेट फॉर हेल्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस वर्ष
वर्ल्ड एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक का जो थीम रहा है वो रहा है एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ। आप देख सकते हैं, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इज हेल्ड एनुअली फ्रॉम नवंबर 18th to 24 to combat antimicrobial resistance and raise global awareness। सो इस वर्ष की थीम आपने देखी, इस वर्ष की थीम है एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ एंड इट एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एएमआर एंड इनकरेज actions to reduce drug resistant infections। So, AMR is a growing global health crisis affecting human, animal, and environmental health, making treatment less effective, especially for conditions like major surgery and cancer chemotherapy। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर एट द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024 एंड 25। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं कुणाल दलाल, रमेश कुमार, प्रिया शर्मा या फिर अरविंद पटेल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर 2024-25 का जो अवार्ड है ये जीता है कुणाल दलाल ने। आप देख सकते हैं कुणाल दलाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JBCN एजुकेशन, was named एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर एट द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024 एंड 2025। So the award was presented in Gurgaon, recognizing his leadership and commitment to building a progressive network of international schools. The JBCN Education was also honored as India's most respected education brand for the second consecutive year, and the core mission of JBCN Education is to nurture lifelong learners, equipping them with the skills, values, and confidence to become change makers। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which shipyard built India's first indigenous aircraft carrier named Vikrant? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस शिपयार्ड ने विक्रांत नामक भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया है। आपके ऑप्शंस हैं मझगांव डॉक लिमिटेड, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो विक्रांत नामक भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो किस शिपयार्ड ने बनाया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका निर्माण किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आप देख सकते हैं The President of India recently witnessed a demonstration on INS Vikrant, India's first indigenously designed and built aircraft carrier. So, designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and constructed by Kochi Shipyard Limited. So, it strengthens India's position as a blue water navy with global reach, joining the US, Russia, France, United Kingdom, and China in the elite group capable of building aircraft carriers. And the ship has a displacement of 43,000 tons and endurance of 13,890 kilometers, and it can accommodate up to 30 aircraft, including fighter jets and helicopters, and it uses the Stauber method to aircraft operations। सो आप देख सकते हैं कि जो INS विक्रांत है इसका जो डिजाइन तैयार किया गया है वो इंडियन नेवी वॉरशिप के द्वारा किया गया है और इसको
इसका जो निर्माण है वो किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और विक्रांत जो शब्द है इसका मतलब होता है करेजियस, ये एक संस्कृत का शब्द है। और इस आईएनएस विक्रांत का जो मोटो है शिप का, वो है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।